Hello guys, I am speaking from Manish Bhardas Academy, and today I am ready with another video. In today's video I will take a chapter of class 12th MP Board English Medium, and the title of this chapter is The Diamond Necklace. It was written by G.D. Maupassant. First of all, have a look at the important glossary. A slip of fate means misfortune, black ox, elegant, stylish and graceful, ceaselessly without pause or end, candelabra, large decorative candle holders, oppressive, tired, exhausted, fatigued, tormented, dainty, small, delicate and attractive, coquettish, a woman who flirts, tureen, a serving bowl, phoenix, an Egyptian she-demon, immoderate, excessive, ample, bounteous, ecstasy, intense delight, rapture, waltz, a ballroom dance in triple movement. इसमें फ्रेंच कल्चर में कपल डांस करते हैं तो उसको वॉल्स कहा जाता है. Shabbiness, wearing worn out attire, पुराने कपड़ों को कहा जाता है. Vestibule, an entrance of a large place, किसी भी महल में जब हम प्रवेश करते हैं तो बाहर एक जो द्वार होता है, we call it vestibule. Garret, an attic, छोटा सा रूम या कमरा. Paste, fake, unreal, जो नकली हो, जो शुद्ध ना हो, we call it paste. Important characters. First, Mathilde, a beautiful woman who was highly ambitious. She was not happy in her life because of poverty. सबसे important character इसमें Mathilde है. She was a beautiful woman and she was highly ambitious in her life, and she was not happy because of poverty. Second character जो सबसे important है, that is Loisel, husband of Mathilde, who was a clerk and an honest person. He was laborious and down-to-earth person and very loving towards his wife. Loisel Mathilde का husband है और ये clerk है, बहुत ईमानदार है, मेहनती है और down-to-earth है और काफी loving है towards his wife Mathilde. Madame Frostier, she was a friend of Mathilde and a very rich lady. She gave the diamond necklace to Mathilde. Mathilde की friend Madame Frostier है, बहुत rich lady है थी ये, and she gave the diamond necklace to Mathilde. Summary of the chapter. The diamond necklace is a story of Mathilde who had to sacrifice in her life. However, she was very beautiful and wanted to marry to a rich person, but unfortunately she had to marry Loisel, who was a simple clerk in the Ministry of Education. After her marriage, she had to sacrifice in many ways. However, Loisel tried his best to fulfill the expectations of his wife, but he could not make her happy. डायमंड नेकलेस कहानी मैथिल्ड की है, एंड मैथिल्ड को अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा. वो एक सुंदर स्त्री थी और चाहती थी कि एक रईस व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी जो हुई वो लॉइजल से हुई. लॉइजल वॉज अ क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये क्लर्क था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, एंड शादी के बाद मैथिल्ड को अपने जीवन में काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़े, और जो लॉइजल था उसने प्रयास किया कि जो भी मैथिल्ड की इच्छाएं हैं, विशेस हैं फॉर गुड लाइफ, वो उन्हें पूरा करे.
और इसलिए जो हमारा चैप्टर है इसके ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैथेल्ड एंड लॉइजल. One day Loisel received an invitation from the Ministry of Education for the ballroom party. When he informed about the invitation to Methel, she did not turn happy because she was not having proper attire and ornaments for the ballroom party. एक दिन लॉयजल को एक आमंत्रण पत्र मिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि उसको और उसकी पत्नी मैथेल को बॉलरूम पार्टी के लिए आमंत्रित किया जाता है. जब उसने ये निमंत्रण पत्र अपनी पत्नी को दिखाया तो मैथेल को ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि उसके पास प्रॉपर अटायर, कपड़े, परिधान और ऑर्नामेंट्स नहीं थे. पार्टी में जाने के लिए आभूषण और कपड़े उसके पास नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं हुई. Loisel arranged a beautiful gown for her and told her to borrow the necklace from her best friend, Mrs. Frostier. Methel went to her home and selected a beautiful diamond necklace for her. Loisel ने सबसे पहले जो भी उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे उससे एक सुंदर सा गाउन उसके लिए खरीदा और ऑर्नामेंट्स वो खरीद नहीं सकता था, तो उसने मैथेल को कहा कि वो अपने दोस्त के घर जाए जो उसकी मित्र है मैडम फ्रॉस्टियर और उनसे एक डायमंड नेकलेस वो ले ले जिससे कि वो पार्टी में जा सके. She went to the ballroom party. Everyone was amazed to see her beauty and elegance. She danced there lunatically, but she returned from the ballroom party. She informed her husband that the necklace was lost. Loisel got surprised and got shattered. He started to search the necklace everywhere, but all the efforts went in vain. Methel ballroom party में गई और she was looking very beautiful, very attractive, very elegant, and उसने वहाँ पे खूब जम के डांस किया, नृत्य किया और सभी सरप्राइज्ड हो गए उसके सुंदर नृत्य से और उसके सुंदर व्यक्तित्व से. और जब वो वापस घर लौटे उस पार्टी से तो मैथेल जब अपने आप को दर्पण के सामने देखने लगी तो उसने देखा कि उसका डायमंड नेकलेस जो है वो उसके गले से नदारद है. When the couple couldn't find the necklace, they went to the goldsmith and bought the same necklace in 36,000 francs. However, they were not having money to buy the necklace, but they arranged it anyway. अब मैथेल्ड और लॉयजल ने ये डिसाइड किया क्योंकि उन्होंने वो नेकलेस बोरो किया था और उस नेकलेस को वापस करना था और अनफॉर्चुनेटली वो नेकलेस खो चुका था. हालांकि जो लॉयजल है उसने बहुत प्रयास किया उसको ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिला, तो उन्होंने एक नया नेकलेस 36,000 फ्रैंक्स में खरीद लिया. हालांकि उनके पास इसके लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और जो लॉयजल था उसने कुछ पैसा उधार लिया और किसी तरह वो नेकलेस खरीद लिया. Because of the most lost diamond necklace, their life became hell. They were completely shattered. They started to live from hand to mouth and started sacrificing small things. They turned poorer and poorer. डायमंड नेकलेस के घूमने से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया. एक तो उनको नया नेकलेस खरीदना पड़ा और पहले ही दोनों काफी संघर्ष कर रहे थे, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और नया नेकलेस खरीदने से उनको और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. वो और गरीब हो गए और अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे.
One day, Mrs. Frostier saw her friend Mathilde. She could not recognize her because she had lost her charm and elegance because of poverty. When she asked about the hardships of her life, Mathilde told her the reality that the diamond necklace which she had borrowed was lost, and because of that, they had to purchase a new diamond necklace. एक दिन मैडम फ्रॉस्टियर गार्डन में टहल रही थी तो उन्होंने एक बूढ़ी सी और एक बहुत अनअट्रैक्टिव बदसूरत सी लेडी को देखा और उस लेडी को वो पहचान गई। वो मैथेल्ड ही थी और गरीबी के कारण मैथेल्ड ने अपना चार्म और अपनी सुंदरता खो दी थी और वो बहुत अजीब सी लगने लगी थी। और उसने बताया कि उसकी ये हालत इसलिए हो गई क्योंकि वो डायमंड नेकलेस खो गया था और उसको नया नेकलेस खरीदना पड़ा और जिस कारण उस पर बहुत सारी उधारी हो गई और वो जीवन में स्ट्रगल करने लगी। When Mrs. Foster came to know about it, she told Mathilde that the necklace which she had given to her was fake and it was not original. जब मैडम फ्रस्टियर को ये पता चला तो उन्होंने बताया कि जो नेकलेस उसने मैथेल्ड को दिया था वो फेक था, अनरियल था, नकली था और उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। लेकिन मैथेल्ड ने जो नया नेकलेस खरीदा वो बहुत महंगा था और इस कारण मैथेल्ड बहुत आश्चर्यचकित रह गई। डिटेल्स ऑफ मैथेल्ड्स कैरेक्टर। शी वॉज एन एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव वुमन। सबसे पहली चीज आप सबको याद रखना है कि मैथेल्ड जो थी बहुत ही सुंदर स्त्री थी, अट्रैक्टिव वुमन थी। शी वॉज हाईली एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी थी। शी वॉन्टेड टू टच द स्काई एंड शी वॉज हाईली एम्बिशियस। शी गॉट मैरिड टू अ पुअर पर्सन कॉल्ड लॉयजल। उसका विवाह जो है वो एक गरीब व्यक्ति लॉयजल से हुआ था। शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। शी वॉज हैविंग uncompromising attitude. Her attitude was not positive towards her married life and she was quite uncompromising. She was obstinate. वो जिद्दी थी and जो भी कुछ ठानती थी उसे पूरा करने का प्रयास करती थी। She was highly sophisticated in her approach and वो बहुत sophisticated थी, stylish थी और उसको कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं था। उसको घूमना पसंद था, उसको पैसे खर्च करना पसंद था, उसको मेकअप करना पसंद था, उसको पार्टीज में जाना पसंद था। शी वॉज अ ग्रेट डांसर एंड अ फैशनेबल वुमन। बहुत अच्छी डांसर थी और फैशनेबल भी थी। Details of Loisel's character. He was an honest and laborious person. Loisel बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। He was very loving husband और बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता था। He was a strong-headed person और बहुत strong-headed व्यक्ति था और कभी भी छोटी मोटी परेशानियों से नहीं घबराता था। He always believed in simple life and high thinking. वो हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करता था। पॉम्पस लाइफ उसको पसंद नहीं थी, लेकिन उसके विचार जो थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। He was a polite person, बहुत पोलाइट विनम्र व्यक्ति था। He was not pompous in his approach और दिखावे का जीवन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He was very loyal to his wife और जो उसकी पत्नी थी उससे वो बहुत प्रेम करता था और कोशिश करता था कि मैथेल्ड को हमेशा वो खुश रखे। डिटेल्स ऑफ फ्रॉस्टियर्स कैरेक्टर। शी वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक वुमन। बहुत रईस परिवार की
ये महिला थी, अनकम्प्रोमाइजिंग थी, पैसे की कमी इनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। शी वॉज वेरी फैशनेबल एंड मॉडर्न वुमन, बहुत आधुनिक थी और मॉडर्न भी ये थी। शी वॉज ए स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन और काफ़ी मजबूत दिमाग की ये महिला थी, मजबूत इरादों की ये महिला थी। शी वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ मैथेल्ड एंड मैथेल्ड की एक अच्छी मित्र ये थी। शी वॉज क्लेवर इन हर बिहेवियर, लेकिन चालाक स्त्री थी ये। और इसने चालाकी क्या की कि जब मैथेल्ड इसके घर डायमंड नेकलेस लेने गई तो इसने मैथेल्ड को फेक डायमंड नेकलेस दे दिया, उसको बिना बताए। शी गेव फेक डायमंड नेकलेस टू मैथेल्ड, और ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डायमंड नेकलेस जो मैथेल्ड को मिला वो नकली था। Thanks for watching my videos, guys. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Take care. Bye bye.